Hello children, I Poonam Bagga welcome you to your maths class. We are studying chapter 15, Introduction to Graphs from class 8th maths. In our previous video, we introduced ourselves to line graphs. In today's video, we will be doing exercise 15.1 in which we will be having many line graphs. We will be studying them thoroughly and then answering the questions that follow. We take the first question. Here we have it. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. Here we have this line graph, and what we see along the x-axis we have the time shown here, and along the y-axis we have the temperature, and as per the time the patient's temperature has been recorded every hour. What we see at 9 am, the temperature of the patient, it is being shown here between 35 and 36, and it should be 35.5 degrees Celsius at 9 am. Then at 10 am the temperature being shown here is 36 degrees Celsius. As we move perpendicularly from this point of time to the graph and then we move perpendicularly towards this y-axis, we get the corresponding temperature. आप जिस भी टाइम को कंसिडर कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलरली बिल्कुल सीधे ग्राफ तक जाएंगे और फिर ग्राफ से हम परपेंडिकुलरली y-axis तक चलेंगे तो हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मिल जाएगा. तो 10 am पर टेम्परेचर हमें दिख रहा है 36 डिग्री सेल्सियस. एट 11 am we can see that the temperature being shown here is 39 degrees Celsius. In this way we will be reading this graph. Now we have some questions and we have to answer these questions one by one. The first one is, what was the patient's temperature at 1 pm? So here we see at 1 pm, this is the point corresponding to 1 pm. As we move perpendicularly from here to the graph, we get this point, and from here we move towards the y-axis, we get the temperature as between 36 and 37. So it should be 36.5 degrees Celsius. So we can easily write the answer to the first part. The patient's temperature at 1 pm is 36.5 degrees Celsius. So we write here the solution, and first we take A part. The temperature of the patient at 1 pm was 36.5 degrees Celsius. It's okay. 36.5 degrees Celsius corresponding to 1 pm. So we have answered the first part. Now the B part. When was the patient's temperature 38.5 degrees Celsius? तो चलते हैं फिर से ग्राफ पर. यहाँ देखिए 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें मिलेगा वाई एक्सिस पर बिटवीन 38 एंड 39. दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू 38.5 डिग्री सेल्सियस. और अब इस पॉइंट से हम ग्राफ की तरफ चलें परपेंडिकुलरली तो ये पॉइंट मिल रहा है और इससे करस्पॉन्डिंग टाइम हम देख सकते हैं इट इज़ 12 noon. सो वी कैन ईजीली राइट द आंसर टू द बी पार्ट. द पेशेंट्स टेम्परेचर was 38.5 degrees Celsius at 12 noon. Okay, next we move towards the C part. What has been asked? The patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? दो समय ऐसे थे जब पेशेंट का टेम्परेचर सेम था और वो दोनों टाइम कौन से हैं ये हमसे पूछा गया है. तो चलते हैं लाइन ग्राफ की तरफ. देखिए आप यहाँ पर 1 pm और 2 pm, ये देखेंगे फ्लैट पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है ग्राफ का, और 1 pm के करस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर देखें तो वो आ रहा है 36.5 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे ही 2 pm पर आप टेम्परेचर देखेंगे तो वो भी आ रहा है 36.5 डिग्री सेल्सियस. तो वो दो टाइमिंग्स कौन से हैं जब पेशेंट का टेम्परेचर सेम था? वो है 1 pm और 2 pm. तो अब इसी आंसर को हम यहाँ लिखते हैं. सी पार्ट वी आर आंसरिंग द पेशेंट्स टेम्परेचर was same at 1 pm and 2 pm. It was 36.5 degrees Celsius.
ठीक है, वो दो टाइमिंग्स लिखने थे जब टेम्परेचर सेम था, वो है 1 PM और 2 PM, और तब टेम्परेचर कितना था, वो है 36.5 डिग्री सेल्सियस. नाउ वी टेक part D here. What was the temperature at 1:30 PM? How did you arrive at your answer? तो अब हमें x एक्सिस पर 1:30 PM के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ढूंढना है, और वो कहाँ मिलेगा हमें? It will be located between 1 PM and 2 PM. This point corresponds to 1:30 PM. Okay? और अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें टेम्परेचर देखना है. इसके लिए हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली ग्राफ की तरफ चलें, और फिर ग्राफ से हम चलते हैं यहाँ y एक्सिस पर. तो आप देखेंगे ये टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस. आप ये भी देख सकते हैं कि बिटवीन 1 PM एंड 2 PM टेम्परेचर कांस्टेंट था, सेम था. ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ग्राफ का, ये भी यही इंडिकेट कर रहा है. और 1:30 PM जो लाई करेगा बिटवीन 1 PM एंड 2 PM, तो उस समय भी टेम्परेचर कितना होगा? वही होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस. सो वी कैन नाउ आंसर दिस पार्ट. दिस इज पार्ट डी. द पेशेंट्स टेम्परेचर at 1:30 PM was 36.5 degree Celsius. ठीक है? And how we arrived at this answer, we also need to explain it. We see here, this is the time which is mid value of interval between 1 PM and 2 PM. ये जो टाइम हमने लिया है 1:30 PM, ये क्या है? मिड वैल्यू है ऑफ इंटरवल बिटवीन 1 PM एंड 2 PM. एंड नाउ एज वी मूव perpendicularly from this point or this time to the graph, and next we can take on the next page, and then to the y-axis we get the corresponding temperature as 36.5 डिग्री सेल्सियस. एक बार समझते हैं फिर से. देखिए, द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1:30 PM was 36.5 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ ओके. This is the time which is mid value of interval between 1 PM and 2 PM. 1 PM और 2 PM के बीच में exactly mid value है 1:30 PM. And as we move perpendicularly from this point to the graph, इस point से हम ग्राफ की तरफ perpendicularly मतलब बिल्कुल सीधे चलते हैं, and then to the y-axis we get the corresponding temperature as 36.5 डिग्री सेल्सियस. जब हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली ग्राफ तक चलें और फिर ग्राफ से y-axis की तरफ चलें, तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमें मिल रहा है 36.5 डिग्री सेल्सियस. इस तरह से हम अपने आंसर पर अराइव कर पाए. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव वन मोर पार्ट हियर, पार्ट ई. During which periods did the patient's temperature showed an upward trend? Upward trend कौन से टाइम पीरियड पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूछा है हमसे. तो देखिए यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड कैसे पता चलेगा? जब ग्राफ ऊपर की तरफ चलेगा तो 9 AM और 10 AM के बीच में ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है. फिर आप देखिए 10 AM से 11 AM के बीच में ये ग्राफ फिर से ऊपर चढ़ रहा है, अपवर्ड ट्रेंड मिल रहा है. इसके बाद 11 to 12 नून आप यहाँ पर देखिए ये नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो ये अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है. और फिर यहाँ से फिर से टेम्परेचर नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड. और फिर आप देखेंगे ये कांस्टेंट रह रहा है, और उसके बाद 2 PM से 3 PM के बीच में फिर से अपवर्ड ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है. तो 3 बार हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है. पहले यहाँ 9 to 10 AM, फिर 10 to 11 AM, और फिर हम देख रहे हैं बिटवीन 2 PM to 3 PM अगेन वी आर गेटिंग एन अपवर्ड ट्रेंड. सो वी राइट हियर
the answer to E part, the temperature shows an upward trend between 9 a.m. to 10 a.m., 10 a.m. to 11 a.m. and then between, we see here, between 2 p.m. and 3 p.m. and between 2 p.m. and 3 p.m. Okay, so we see here there are 3 intervals between which the temperature is showing upward trend. With this, now we have completed first question. We move towards question number 2. Here we have the following line graph shows the yearly sales figures for a manufacturing company. We see the graph here first. This is the graph. Along the x-axis we can see the years 2002, 2003 and so on, and along the y-axis the sales in rupees crores it has been shown. Now what questions follow? First one, what were the sales in 2002 and 2006? तो देखिए आप 2002 में कितनी सेल हो रही है? This point corresponds to rupees 4 crore, and 2006 what we see, it's this point, and this corresponds to rupees 8 crore. So here we can give the solution to the first part. Sales in 2002, it is rupees 4 crore. ओके देखिए आप ये यहाँ से आप परपेंडिकुलरली ग्राफ तक चलिए ये पॉइंट, और फिर यहाँ से आप देखेंगे इट्स रुपीज़ 4 करोड़. इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. देन सेल्स इन 2006, इट इज़ गिवन बाय, एज यू कैन सी, इट्स रुपीज़ 8 crore. So it's easy to answer such questions. Next we have here, what were the sales in 2003 and 2005? तो चलते हैं 2003 में आप देखेंगे it is between 6 and 8, so it corresponds to 7. So in 2003 we have the sales as rupees 7 crore, and then in 2005 here we have the sale as रुपीज़ 10 करोड़. यहाँ से आप ग्राफ तक चलिए, ये पॉइंट मिलेगा, और फिर इस पॉइंट से आप वाई एक्सिस पर चलेंगे तो यू गेट हियर द सेल्स इन 2005 एज रुपीज़ 10 करोड़. सो हियर वी गिव द आंसर टू द बी पार्ट. सेल्स इन 2003, it is rupees how much? It's rupees 7 crore. I hope it's very much clear. And sales in 2005, this is equal to how much? Yes, rupees 10 crore. ठीक है, क्लियर है. यहाँ पर जो रुपीज़ दिए गए हैं इट्स इन करोर्स. जस्ट हैव अ लुक हियर. नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन. पार्ट सी. Compute the difference between the sales in 2002 and 2006. 2002 में जो सेल रही है और 2006 में जो सेल रही है उनका हमसे डिफरेंस पूछा है, और वो हमने देख ही लिया है. 2002 में है रुपीज़ 4 करोड़, 2006 में रुपीज़ 8 करोड़. इनका डिफरेंस क्या हुआ? येस, वी कैन इजीली फाइंड दिस डिफरेंस. वी राइट द सॉल्यूशन. डिफरेंस बिटवीन sales in 2002 and 2006, it is equal to, let me make some space here, it is equal to rupees 8 minus 4 करोड़. कितना हो गया देखिए, ये हो जाएगा आपका रुपीज़ 4 करोड़. 2002 में कितनी सेल हो रही है? 4 करोड़. 2006 में 8 करोड़. तो डिफरेंस क्या हुआ? रुपीज़ 8 माइनस 4, एंड सो इट विल बी इन करोर्स रुपीज़ 4 करोड़. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006. और आप इसको ग्राफ से भी विजुअलाइज कर सकते हैं. 2006 में यहाँ पर 8 फिगर आप देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. 2002 में आप देख सकते हैं 4. डिफरेंस विल बी 8 माइनस 4, इट विल बी रुपीज़ 4 करोड़.
Okay, we have one more question, part D. In which year was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year? आपको बताना है वो ईयर जब जो सेल है उसका डिफरेंस ग्रेटेस्ट था अपने प्रीवियस ईयर से. तो चलते हैं ग्राफ की तरफ. देखिए आप 2003, यहाँ पर आप कितना इंक्रीज देख रहे हैं 2002 से 2003 तक. आप देखेंगे 7 - 4 इट्स ₹3 करोड़. तो 3 करोड़ की यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. फिर 2003 से 4 तक तो डिक्रीज हो रहा है. फिर 2004 से 2005 में फिर से इंक्रीज हो रहा है. कितना हो रहा है? 2004 में आप सेल्स देखेंगे 6 करोड़ है और 2005 में ये है 10 करोड़. कितना डिफरेंस आ रहा है? ₹4 करोड़ का. And then so here we can say that the greatest difference lies between 2004 and 2005. यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट डिफरेंस आ रहा है. 2004 में सिर्फ 6 करोड़ थी जहाँ पर सेल, 2005 में ये हो गई 10 करोड़. तो 4 करोड़ का इंक्रीज हो गया. यहाँ पर जबकि हम देख रहे हैं 3 करोड़ का ही इंक्रीज है, यहाँ पर डिक्रीज है और यहाँ फिर से डिक्रीज है. तो ये हो गया ईयर 2005 जिसमें प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने पर ग्रेटेस्ट डिफरेंस हम देख पा रहे हैं. सो वी राइट द आंसर टू डी पार्ट हियर. In 2005 there is greatest difference between sales as compared to its previous year. It's okay? I hope. Yes, it's very much clear. अपने पहले वाले ईयर से कंपेयर करनी है सेल को. तो 2005 में 10 करोड़ है और 2004 में 6 करोड़, तो डिफरेंस आ रहा है 4 करोड़ का. इसके बाद भी आप अगर देखें 2006 में तो डिक्रीज़ आ रहा है और 2 करोड़ का डिक्रीज़ हो रहा है. यहाँ पर सिर्फ 3 करोड़ का इंक्रीज़ हो रहा है. यहाँ आप देखेंगे 7 से 6 ₹1 करोड़ का डिक्रीज हो रहा है. तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर 2005 में है एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर. दिस इज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 2. नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन 3 हियर. For an experiment in botany, 2 different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. 2 प्लांट एक साथ उगाए गए, प्लांट A और प्लांट B under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. 3 हफ्तों तक, 3 वीक्स तक उनकी हाइट को मेजर किया गया. पर वीक का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ इस ग्राफ में आप देख सकते हैं. देखिए स्टार्टिंग एक साथ हुई दोनों प्लांट्स की और फिर क्या देखा, आफ्टर 1 वीक दिस डॉटेड लाइन इट इज़ इंडिकेटिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट ए, और ये जो कंप्लीट लाइन है सॉलिड लाइन ये प्लांट बी की ग्रोथ को इंडिकेट कर रही है. आफ्टर 1 वीक द ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन सी इट इज़ गिवन हियर इन सेंटीमीटर्स द हाइट ऑफ द प्लांट, सो इट विल बी 1 centimeter. This is the height of plant B after 1 week, 1 centimeter. Then plant A, its height is how much? 2 centimeter after 1 week, and so on. You can study this graph. Now we will be answering the questions that follow. The first one, A part. How high was plant A after 2 weeks? After 3 weeks. Plant A की height बतानी है after 2 weeks and after 3 weeks. तो देखिए ये है यहाँ पर सेकेंड वीक का इंडिकेशन. यहाँ पर आप देखेंगे प्लांट A की हाइट ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है और तब हाइट है कितनी, बिटवीन 6 and 8 इट इज़ 7 centimeters. जो हाइट दी गई है y एक्सिस पर इट इज़ इन सेंटीमीटर. सो आफ्टर 2 weeks द हाइट ऑफ प्लांट A इज़ 7 centimeter एंड आफ्टर 3 weeks वी कैन सी हियर, यहाँ से आप चलिए और ये पॉइंट किसको रिलेट कर रहा है, इट इज़ रिलेटिंग दिस पॉइंट एंड इट इज़ बिटवीन 8 and 10, so it is 9 centimeter. So we can write the solution to this part. Here on this page we start the solution. First A part, height of plant A after 2 weeks. बताइए कितनी देखी हमने, it is 7 centimeter, and then we write here 7 centimeter. Second here we take after 3 weeks.
कितनी हाइट हो गई प्लांट ए की? हैव अ लुक, इट इज रिलेटिंग टू 0.9 हियर एंड सो द हाइट इज 9 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन टू पार्ट ए. Then we will answer part B. Let us see what is the question here. Part B. How high was plant B after 2 weeks, after 3 weeks? अब हमें height देखनी है plant B की. We take here plant B after 2 weeks. देखिए एक ही point पर दोनों की height मिल रही है, दोनों का ग्राफ मिल रहा है और ऐसे में आप कहेंगे कि प्लांट बी जो है वो भी आफ्टर 2 वीक्स उसकी हाइट कितनी रहेगी? 7 सेंटीमीटर. सो बोथ प्लांट्स आर 7 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 2 वीक्स. और आफ्टर 3 वीक्स द हाइट ऑफ प्लांट बी यू कैन सी इट इज कमिंग आउट टू बी 10 सेंटीमीटर. सो वी राइट हियर height of plant B first after 2 weeks. We see the height is same as that of plant A, 7 centimeter. Then after 3 weeks it is equal to 10 centimeter. As we have seen it is 10 centimeter. देखिए 10 से यहाँ पर relate कर सकते हैं. Next we have part C. The question here, how much did plant A grow during the third week? थर्ड वीक में कितनी ग्रोथ हुई? तो आप देखिए सेकेंड वीक में हाइट थी 7 सेंटीमीटर और थर्ड वीक में प्लांट ए की हाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ 9 सेंटीमीटर. तो कितनी ग्रोथ हुई? इट विल बी 9 minus 7 दैट इज 2 सेंटीमीटर. सो वी राइट हियर द आंसर टू सी पार्ट, ग्रोथ ऑफ प्लांट ए ड्यूरिंग third week, it is equal to how much? 9 centimeter minus 7 centimeter, it is equal to 2 centimeter. तो third week में 2 centimeter height increase हुई plant A की. Next we take here question number D. How much did plant B grow from the end of the second week to the end of the third week? तो actually third week में कितनी growth हुई plant B की? This is the question. We take here the graph. देखिए सेकेंड वीक के बाद प्लांट बी की हाइट 7 सेंटीमीटर और थर्ड वीक के बाद आप देखेंगे प्लांट बी की हाइट आ रही है 10 सेंटीमीटर. यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ. तो कितना इंक्रीज हुआ? इट विल बी 10 minus 7. दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 10 minus 7 इट विल बी 3 सेंटीमीटर. सो वी राइट हियर द आंसर टू डी पार्ट, ग्रोथ ऑफ प्लांट बी ड्यूरिंग third week, or you can say at the end of third week, from the end of second week to the end of third week. You can write in the words of the question also, or this means growth of plant during third week, it will be given by 10 centimeter minus 7 centimeter equal to 3 centimeter. Okay, very easy, very simple. Next we have one more question here. पार्ट ई, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट? कौन से वीक में प्लांट ए की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम रही? तो चलिए चलते हैं ग्राफ पर. आप देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये प्लांट ए को इंडिकेट कर रही है. तो फर्स्ट वीक में प्लांट ए की हाइट कितनी बढ़ी? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वी हैव आफ्टर दी 1 वीक वी हैव द हाइट ऑफ प्लांट ए एज 2 सेंटीमीटर. उसके बाद सेकेंड वीक के एंड में 7 सेंटीमीटर और फिर थर्ड वीक के एंड में आ रही है 9 सेंटीमीटर. आप देख सकते हैं ये जो स्लोप है ग्राफ का ये मैक्सिमम है ड्यूरिंग द सेकेंड वीक और ऐसे में आप देखेंगे जो मैक्सिमम ग्रोथ हुई है प्लांट ए की वो हुई है सेकेंड वीक में. फर्स्ट वीक में सिर्फ 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी, फिर सेकेंड वीक में 2 से 7 कितना डिफरेंस हो गया? 7 minus 2 इट्स 5 सेंटीमीटर. तो सेकेंड वीक में 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी और फिर थर्ड वीक में हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही हाइट बढ़ी. तो प्लांट ए की ग्रोथ मैक्सिमम कौन से वीक में हुई? इट इज़ इन द सेकेंड वीक. और यही हमसे पूछा है देखिए कि ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट. सो हियर वी कैन गिव द आंसर. We take one more page and then we answer part E. Plant A grew most in the second week. Okay, you can also show the growth of plant A
ड्यूरिंग सेकेंड वीक, ये भी आप शो कर सकते हैं. इट इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. और इससे हम देख सकते हैं कि सेकेंड वीक में मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है प्लांट ए की. नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन. दिस इज पार्ट एफ. ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट. प्लांट बी की किस वीक में लीस्ट ग्रोथ हुई है. तो चलिए ग्राफ पर, यहाँ पर देखिए ये जो वाइट लाइन है, सॉलिड लाइन, ये प्लांट बी का ग्राफ इंडिकेट कर रही है. फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इन द फर्स्ट वीक द ग्रोथ वॉज ओनली 1 सेंटीमीटर. फिर सेकेंड वीक में आप देखेंगे हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर, ग्रोथ हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर, 7 माइनस 1 6 सेंटीमीटर. और फिर थर्ड वीक में आप देखेंगे 3 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है. तो कौन से वीक में लीस्ट ग्रोथ हुई. ऑब्वियसली इट इज़ द फर्स्ट वीक, जहाँ सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही हाइट बढ़ी प्लांट बी की. तो हम यहाँ आंसर लिखते हैं. प्लांट बी grew least in the first week. Okay, it's only 1 centimeter. Then we move back and have the other question, G part. Were the two plants of the same height during any week shown here? Specify. क्या दोनों प्लांट्स कभी भी सेम हाइट के हुए. तो आप देख सकते हैं कि येस, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक बोथ प्लांट्स वर ऑफ द सेम हाइट 7 सेंटीमीटर. दोनों ही ग्राफ यहाँ पर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं. ये डॉटेड लाइन भी और ये सॉलिड लाइन भी इस पॉइंट पे मिल रहे हैं. तो ऐसे में हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक बोथ प्लांट्स वर ऑफ द सेम हाइट. वी राइट हियर द सॉल्यूशन. देन वी हैव पार्ट जी. Both plants were of the same height (7 centimeter) at the end of the second week. This is indicated as the graphs, or we can say both the graphs, as both the graphs meet at one point. Corresponding to the end of second week. देखिए बोथ प्लांट्स वर ऑफ द सेम हाइट 7 सेंटीमीटर एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक. और ये कैसे पता चल रहा है हमें. दिस इज इंडिकेटेड एज बोथ द ग्राफ्स मीट एट वन पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ सेकेंड वीक. सो as both the graphs meet at one point at the end of the second week, in the graph we can see from here, we can say that both plants have the same height at the end of the second week. Okay, with this we have answered all the questions and we have completed this question. We can now take the next question. Here we have it. Yes, question 4. The following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of a week. आपने सुना होगा मौसम विभाग जो है वो पहले से ही आपको टेम्परेचर बता पाता है, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या आने वाले समय में क्या टेम्परेचर होगा, कैसा मौसम रहेगा. और यहाँ पर उसे हम कहते हैं फोरकास्ट टेम्परेचर. एंड we also know the actual temperature. Here we have been given one graph. Let us see first. These are the different days of a week: Monday, Tuesday, Wednesday and so on. And this is the temperature along the y-axis. और अब यहाँ पर 2 लाइन ग्राफ है. एक लाइन ग्राफ तो इंडिकेट कर रहा है फोरकास्ट टेम्परेचर को और एक लाइन ग्राफ इंडिकेट कर रहा है एक्चुअल टेम्परेचर को, जो उस दिन एक्चुअल टेम्परेचर रहा. और यहाँ आप देखेंगे जो डॉटेड लाइन है, येलो डॉटेड लाइन, ये इंडिकेट कर रही है फोरकास्ट टेम्परेचर को, और ये जो वाइट सॉलिड लाइन है, दिस इज इंडिकेटिंग द एक्चुअल टेम्परेचर ऑन दैट डे. नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो.
फर्स्ट वन, ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। चलिए ग्राफ पर चलते हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहे। और आप देखेंगे ऑन ट्यूसडे, यस दिस इज द पॉइंट, हियर वी सी both the line graphs are meeting at this point on Tuesday. So on Tuesday the actual temperature and the forecast temperature were the same. Again we can see on Friday both the temperatures were same as both the line graphs are meeting at this point, and then on Sunday also we see both graphs are meeting at this one point, and so the temperatures, forecast temperature and the actual temperature both were same on Sunday. So here we have 3 days and we can give the answer to the first part here. On which days? We give the solution. A part, the forecast temperature and actual temperature were same on, let us see, on Tuesday, Friday and Sunday. We write here on Tuesday, Friday and Sunday. Okay, clear? Next we have part B. What was the maximum forecast temperature during the week? चलिए चलते हैं ग्राफ पर, मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर। तो आप देखिए मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ बड़ी होती जा रही हैं, तो आप देखेंगे मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर संडे को दिया गया है और वो है 35 डिग्री सेल्सियस। सो वी गेट द आंसर टू दिस बी पार्ट। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? वी राइट हियर द मैक्सिमम forecast temperature during the week was 35 degree Celsius on Sunday. ठीक है, it was 35 degree Celsius on Sunday. Okay, next we have part C. What was the minimum actual temperature during the week? Minimum actual temperature ये white line से indicated है, और आप देखिए मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, ये मिनिमम के लिए हमें नीचे वाली वैल्यूज़ देखनी होंगी क्योंकि नीचे जाते हैं तो वैल्यूज़ कम हो रही हैं, और आप देखेंगे यहाँ से ये आपको देगा मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर। वाइट लाइन इंडिकेट कर रही है एक्चुअल टेम्परेचर को, इट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। सो वी राइट आंसर हियर टू द सी पार्ट, द मिनिमम actual temperature during the week was 15 degree Celsius. Okay, then D part, on which day did the actual temperature differ the most from the forecast temperature? कौन से दिन दोनों टेम्परेचर्स में मैक्सिमम डिफरेंस था, उसके लिए ग्राफ पर चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस दिख रहा है, ये है 15 और यहाँ बीच में आप समझ सकते हैं 20 और 15 के बीच में क्या आएगा, 17.5 डिग्री सेल्सियस, और आप देखेंगे इट्स द डिफरेंस ऑफ 2.5 डिग्री सेल्सियस। या सिंपली आप देखिए यहाँ पर ये 1 ब्लॉक है बीच में, इस तरह से यहाँ पर तो दोनों सेम है, यहाँ बीच में दोनों टेम्परेचर्स के बीच में 2 ब्लॉक्स हम देख पा रहे हैं। फिर हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 ब्लॉक्स आर देयर बिटवीन द 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑन थर्सडे, एंड देन वी सी बोथ द टेम्परेचर्स आर सेम हियर। यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस आप ये 2 ब्लॉक से देख सकते हैं, और फिर संडे को दोनों टेम्परेचर्स सेम हैं। तो कौन से दिन मैक्सिमम डिफरेंस दिख रहा है दोनों ही टेम्परेचर्स में, आप देखेंगे ये डिफरेंस,
ये डिफरेंस मैक्सिमम है, इट इज़ ऑफ 3 ब्लॉक्स। आप यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज़ को लेकर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट ऑन लुकिंग एट द ग्राफ वी कैन सिंपली गेट द आंसर, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्लॉक्स का डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस है, यहाँ 1 ब्लॉक का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम डिफरेंस कब दिख रहा है हमें? दोनों ही टेम्परेचर्स में। इट इज़ ऑन थर्सडे। और कितना डिफरेंस है ये नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है कि ऑन विच डे। तो इसके लिए हम आंसर स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं, द आंसर टू डी पार्ट, ऑन थर्सडे द एक्चुअल टेम्परेचर differed the most from the forecast temperature. अगर आपसे पूछा होता कि कितना डिफरेंस रहा तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी एक बार देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए थर्सडे को ये जो डॉटेड लाइन है ये फोरकास्ट टेम्परेचर इंडिकेट कर रही है, और फोरकास्ट टेम्परेचर कितना होगा? बिटवीन 20 एंड 25, इट विल बी 22.5 डिग्री सेल्सियस। और फिर आप देखेंगे थर्सडे को ही एक्चुअल टेम्परेचर कितना है? 15। तो कितना डिफरेंस हो जाएगा? 22.5 माइनस 15.0, यू कैन सब्ट्रैक्ट 0.5 here, 12 minus 5, it's 7, and so it will be 7.5 degree Celsius, the difference between the two different temperatures on Thursday. समझ में आ रहा है? लेकिन क्योंकि अभी हमसे पूछा नहीं है, so it's enough if we write on Thursday the actual temperature differed the most from the forecast temperature. With this we complete exercise, and I hope you enjoyed all these questions. It was easy to first read the line graph and then answer the questions. Bye for now.